सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति हरि ओम। तो सुचरिता, स्वामी जी प्रणाम महाराज नमस्ते नमस्ते. प्लीज you will do the summary, na? जी. So will you give me 25 minutes at least, Maharaj? Maharaj जी 25 minutes now. 20 minutes, 5 minutes less. बड़ा है ना, 20 पेज का. Try to do it a little. 20 पेजेस का है. 20 पेज का है ना महाराज जी. I know. जी 25 minutes only. Okay. 25 minutes becomes okay. Okay, thank you. Anyway, if it becomes too short, I will stop you. Start. Okay. Now, today's topic is mystic worship. This article is written by the Swami Yatishwaranand Maharaj. Now, offer everything to God. As in Bhagavatam mentions, we should offer everything that comes to us to the Lord. Yes. Anything can be offered to God, like our food, new dresses, car, etc. Before we start choosing it, first offer it to Lord mentally. Then accept it as a holy thing and use it with care. This purifies the mind and our soul grows. God is the greatest purifier. The act in itself may not be great, but when hundreds of little actions of offering is done, the cumulative effect of all these after some years is really tremendous, because gradually a spirit of surrender and detachment will come to us. The best way to cultivate the idea of sacrifice is through service. We should look upon everyone as a temple of God. By serving man, we are worshipping the Lord. When a hungry man comes to us, give him a share of our food. When poor man comes to us, give him a share of our wealth. Similarly, we can sacrifice our time, pleasure, energy, etc. for the service of those who are ignorant and or suffering. This is the way of corresponding. This is the way of worshipping the Lord. Offering flowers and incense is not the only form of worship. We should develop a synthetic vision, a wider perspective. At the back of our limited existence, our limited consciousness, our limited joys, there is the one individual infinite being manifesting himself through every individual, which is the great idea behind Swami Vivekananda's philosophy of work. Mental worship or upasana. This is a higher form of worship. Literally, upasana means to sit near the deity. In practice, it means meditation or contemplation on God. This kind of mental worship is the principal spiritual practice in the dualistic and qualified monastic system of Vedanta. This system regards God as master and self as servant, and God and self as two separate entities. In advanced stage, the devotee remains as soul and God as the soul of the soul. This attitude may serve as a stepping stone to the path of Advaitism. For those whose nature inclines towards a formless God, it may be helpful in the beginning to consider Brahman or Supreme Spirit as the ocean and the individual self as the wave. This is the I of the individual soul, distinct from Supreme Spirit, but actually it exists only in relation of microcosm and
microcosm to macrocosm. The wave and the ocean, both are nothing but the water. So, as the seeker advances along the spiritual path, he is finally able to realize that water alone is real and the waves are unreal. The distinction between the individual and the universal, the macrocosm and the microcosm is lost, and the absolute, the one without a second, alone remains. However, this is all very difficult to attain for majority of people. They need some kind of worshipful symbols for their meditation. Otherwise, their mind wanders. In order to concentrate the mind, some holy objects are selected, which is symbol of God. This is a practice common to the devotees of personal God as well as to those who, who meditate on the impersonal God. God is worshipped not as a symbol but through a symbol. Since God by definition is the supreme spirit out of which all things come into existence, by which all things are sustained and into which all things return, an object can in a way become a symbol of God. The sun is a good symbol of God as source of cosmic energy. It gives light and heat. And second, the fire. Swami Brahmananji Maharaj says men inclined to the different ways of worship to satisfy the various temperaments. The scripture describes four distinct methods of reaching God. The first, ritualistic worship, worshipping God in images or symbols. Second, higher than this, is worshipping God with prayer and japa. Third, still higher, is meditation, that is constant flow of thought towards God. He remains absorbed in the living presence of his chosen ideal. Here there is neither prayer nor japa, but the sense of duality remains. He is and I also am. The fourth, the highest method, which leads directly and immediately to God, is to meditate on the unity of the Atman with Brahman. The experience Brahman constantly to know always that he is. To merge oneself in the absolute, the one without a second, is the goal of the Advaitic spiritual practice. The followers of this method, being established in perfect purity, negates all the limiting adjuncts of the soul and through it reaches the ultimate reality. This process is called nididhyasan. A less qualified spiritual seeker may practice aham graha upasana, a method of worship in which the worshipper identifies himself with object of his worship, God or Brahman or any particular deity, and meditates on his own self. Meditation on the identity between the worshipper and worshipped leads to realization of the one without the second. Worship through symbols. For those who find this process also difficult, they are doing pratik upasana or worship with the help of some appropriate symbol. The deity is worshipped not as a symbol but through the symbol. The aim is to recognize in the limited symbol the presence of the all pervading spirit, which transcends all limitation of name and form. As Swami Vivekananda remarks, where Brahman himself is the object of worship, the pratik stands only as a substitute. Pratik are of two types. First, internal, like mind, intellect, or soul of the worshipper, and second, external, like sun, space, fire, or sound symbol like Om. Through properly performed meditation, the same spirit is ultimately recognized as pervading and transcending both the internal and external plane of existence. Those who find even the above mentioned symbol of worship to be too subtle should begin with use of pratima or anthropomorphic images. Here also, idols should be worshipped as a symbol of Ishwar or Supreme Spirit. As Swami Vivekananda says, if the image stands for a god or saint,
The worship does not lead to liberation, but if it stands for the one God, the worship will bring devotion and liberation. God is one, but his aspects are many, as it is impossible for us to worship him in all his fullness and glory. We take up some aspects or the other of the Lord. But even in order to approach him through any of his personal aspects as Shiva, Vishnu or divine power, we need help of different symbols. There are three types of symbols. First, material symbol like images of deity or yantra. Second, as he advances, uses the sound symbol to call up the divine. And third, further proceeds with mental worship on the plane of thought silently. Some Hindu religious symbol. Shiva is worshipped in an image or in form of linga. To them, linga is just a non-anthropomorphic aniconic form or symbol of supreme spirit. Tantric devotees take linga as a symbol of the divine male-female creative power. Shaligram Shila symbol associated with Vishnu. Yantra or geometrical diagram represents mystical body of the divine power. Ghat or pot full of water represents the formless, all-pervading spirit. Lighted fire is recognized as body of God and is worshipped by offering oblations into it. Om represents the undifferentiated Akhand Brahman. Other mantras or names represent differentiated Khand Brahman, aspects of the same being. The holy names are the sound manifestations of divine power, which is awakened through japa or the repetition of word or meditation on its meaning. As we studied the life of Christ Chaitanya Mahaprabhu and Sri Ramakrishna, we find that to all of them, God was the highest reality. We may take up any symbol and any kind of relationship with God. We may look upon him as our father, mother, child, friend, or lower or lover, but always make him our nearest and dearest. Spiritual progress through worship. Spiritual life is just like a staircase. We must proceed step by step. We must first find out where we are, otherwise progress is not possible. We may begin with external worship, going to temple, etc. But we should become more and more introspective and seek the divine in his real abode in our soul. External worship should lead us to internal worship sooner or later. We should not spend all our life just doing external worship. The God we seek dwells eternally in our hearts, but we want to find him outside. The body as a temple of God. The body of ours is a temple of the divine. Instead of worshipping God in the elements like fire and water, in plants and animals, or in images of clay, stone, and metal, we may worship him in the image of the human body, regarding it as a temple or a chariot or a house of the divine who dwells and shines in the hearts of us all. By worship and prayer, we cultivate the right mood and attitude without which external progress is not possible. The right mood can be created by controlling the lower planes of thinking. The different planes of thinking associated with the sixth yogic center of the spinal cord, that is the Kundalini chakra, and the seventh in the brain, like the different stories of building connected by staircase. The centers are like points of contact between ourselves and various places of consciousness. But every aspirant who wants to follow the path of meditation should try to raise the center of consciousness at least to the center in the region of the heart, that is Anahat chakra. Those who are not drawn towards any particular symbol or image, that is, those who are nirakari, may meditate in some higher centers or plane of consciousness on the divine light that permits not only one's own being but the whole universe of men and things.
However, the aspirant who cannot do without a form may carry on meditation on a luminous form, which will ultimately lead to meditation on formless luminosity, the light of the spirit that illumines all things. The soul is covered with a causal body, then by a mental body, and then by a physical body. All these three bodies are tainted. The causal body by primordial ignorance, the mental body by our tendencies and emotions, and physical and mental body together by inharmonious ego with its selfish desire. The disharmonious ego makes mind sick, sick mind affects senses, and both together disturb functioning of body. However, there is cure for this disharmony. Take them all, gross and subtle bodies together, to the source from which they come. We forget the supreme fact that we live in God and God lives in us. Through meditation, one proceeds from lower to higher one until the individual soul is united with oversoul. It requires practice. We know then that there is something of that divine spirit immanent in us. If we can feel the constant presence of that spirit both within and without us, we shall become charged with new energy. There will be changes in quality of our living, and our service and our attitude both towards others and towards ourselves will be different. Japa is the base form of mystic worship. Worship is done in three forms. One, physical, that is external worship. Second, verbal, that is praise and prayer, that is doing japa and stotra chanting and kirtan. In Kali Yuga, japa is the base form of mystic worship. Along with japa, dwelling on divine attributes, visualize a holy form of our Ishta Devata, that is Rupa Dhyan, or think about divine qualities like love, compassion, power and purity, etc. That is Guna Dhyan. Visualization, bhavna, means calling up the image, is image of the deity with love and reverence, is in itself a higher form of mental worship, Manas Puja. Japa and visualization must go hand in hand. The holy form must be visualized as luminous and blissful and living and real. Think of our body as luminous and then install the luminous form of our Ishta in the luminous center in heart. Swamiji has given few beautiful steps of meditation. Sit down in a proper position, then with folded palm, whoever remembers the Lord becomes purified inwardly and outwardly. Next, imagine that the individual soul is rising from the lower center of the body to the center in head and is getting united with the light of universal spirit. Then spirit there, then further imagine that both gross and subtle body with all the objects and images have merged in the light of absolute, which alone now shines everywhere inside and outside. Next, the devotee feels his center of consciousness in heart and let him visualize that center there has emerged out of the ocean of light the effulgent divine form of his chosen deity. Let the aspirant identifying himself with new subtle spiritual body, and he worships and meditates on the East along with Japa. Let him not lose sight of formless, which supports and permeates both the holy form and his own new spiritual body. Finally, let the devotee surrender his all to the divine, uttering the following prayer: being subject to the impulses of the vital energy, intellect and body, whatever sin has been committed by me in the state of waking, dream or deep sleep, in thought, words and deed, by means of different organs, may all this be offered to Brahman. Even after finishing the japa and meditation, let the devotee hold on to his center of consciousness, always trying to remain in that elevated mood. Every aspirant must have three things. One, a definite center of consciousness.
2, a definite mantra, and third, a holy form. Need for holy personality. When we have a strong body consciousness and we take our personality to be the only reality, then we need a holy personality for our spiritual practice and growth. We must find a connection link between form and formless. Form is only a manifestation of the formless. The holy personality is a manifestation of the formless principle that stands at the back of all. Holy personality serves as the connecting link between the finite and infinite. In calling up the holy form, one may take help of sound symbol Om. This may be used first with reference to the form and then also to the formless. Mantra given by qualified guru is used. The aspirant must have faith in guru and in power of mantra while doing the japa. The sound and form both are symbol of divinity. We take help of both to call up the divine consciousness. With the help of holy personality, we try to realize the principle manifesting itself as name and form, and we begin to feel that we too are manifestations of that principle. After getting a glimpse of the immanent in the holy personality, we get a glimpse of it in ourselves and also in other people. We have to learn to see the divine in all forms, good and bad, without, of course, losing the distinction between good and bad. Then the bad one can affect us to all. We should try to see the divine not only in the form that lies in the physical world, but also in these in our mind. Conclusion: the word worship in Hinduism is something different from other religions. It means upasana, approaching divine step by step until the self attains identity with. One begins with physical images, then shifts to mental images and japa, and finally to the union of the soul with the Supreme Spirit. Through a graded course of discipline, body consciousness and egotism are progressively reduced and the potential divinity of the soul manifests more and more. In this march of the soul, it passes through several stages and overcomes many obstacles until it attains perfection. True devotees see the divine immanent in themselves and in all beings. Their whole life thus become a worship of the Supreme Spirit, and they enjoy supreme peace and fulfillment. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you. Well done. Well done. Very good, Maharaj. Okay. Shall we start the questions? Yes. Subir? Pranam Maharaj ji. हाँ भाई लो. First question, Maharaj ji. I have understood what is mystic worship and why it is called mystic. But why is it called mystic? पहली बात तो ये है कि mystic worship जो explain किया वो तो समझ गया, लेकिन mystic क्यों कहते हैं? पहली सवाल. और उसी के साथ जुड़ा हुआ है, such worship is seen in Sufis also. Eastern Orthodox Church वाले भी करते हैं. तो so why have they not found a mention in this article? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टिक क्यों कहते हैं? जी जी. देखो, मिस्टिक शब्द का डिक्शनरी में है, उससे रिलेटेड है समथिंग रिलेटेड टू कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन. एंड सेकेंडली, जिसके अंदर सम एक स्पिरिचुअल गोल इज इन फ्रंट, देयर इज सम एक्सपीरियंस विल हैपन. जी जी. So when we talk of mystic worship, यानी इस मिस्टिक वर्शिप में मेडिटेशन होगा, कंटेम्पलेशन होगा, और उसके बाद में तुमको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम उसी लेवल पे नहीं रहोगे, कुछ न कुछ तुमको अवश्य प्राप्त होगा. राइट राइट. इसलिए इसको मिस्टिक वर्शिप कहा जाता है. अच्छा, सेकंड इज, महाराज ने दूसरे लोगों को, दूसरी जो होती है क्रिश्चियनिटी वगैरह में है,
Yatishwaranand ji did not feel it necessary that why should he mention about it. वो तो Okay. एक पर्टिकुलर बात बताना चाहते हैं ना, वो तो बताना चाहते हैं कि ध्यान जप करने से या पूजा करने का क्या एडवांटेज होता है, वो स्पिरिचुअल उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना चाहते हैं। अब वो कितने धर्मों में है कि नहीं है, इससे क्या लेना देना तुमको। You know, our mind gets, this is a very important point. We sometimes start thinking and उसमें भी है क्या, उसमें भी है क्या. We go for curiosity and not for the practical part. One has to be very careful in our mental approaches. You are not, I mean, Yatishwaran ji, even Yatishwaran ji से महापुरुष ने उसको मेंशन नहीं किया। जी और जी हम लोग करेंगे कि जानने अरे मिस्टिक विस्टिक क्या होती है क्रिश्चियनिटी में, होती है कि नहीं होती है, होती है तो क्या होती है। अरे बाबा हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में ये पूजा है, पूजा पद्धति है, उसको करो, मैटर एंड्स देयर। सो दैट वाज द पॉइंट। ठीक है, जी जी बिल्कुल समझ गया महाराज. We should have focused in our own line of worship rather than diverting यस our. नॉट ओनली दिस, हां, नॉट नेसेसरी व्हाई शुड ही मेंशन अबाउट इट. जी महाराज. Second महाराज. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, next question is what are false symbols? He mentions true symbols and false symbols. I have tried to find out, I am not able to store it out. जी महाराज. वो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ तो ये है क्या, व्हाट आर फॉल्स सिंबल्स, हाँ, है ना। इसे हमें अवॉइड करना चाहिए. ये मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. Yatishwaran ji has mentioned there are symbols and symbols. There are right, good, true symbols and false symbols. What he means by that I don't understand. Not Right. sure. Maybe the tribal gods जो होते हैं, तो tribal gods हैं, उनके भी एक लकड़ी का एक सिंबल होता है, और ट्राइबल गॉड्स मोलॉक्स हैं तो वो लड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि एक मोलॉक, एक ट्राइब का मोलॉक दूसरे ट्राइब के मोलॉक से लड़ता है, तो ये उनके गॉड्स जैसे होते हैं, और उनके लकड़ी वकड़ी के सिंबल्स वगैरह होते हैं। ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि देयर इज ए सिंबल, लेकिन उसका आइडिया तुमको क्लियर नहीं है, पूजा कर रहे हो लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, ये भी हो सकता है। लेकिन आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई कैन नॉट रियली आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, व्हाट आर फॉल्स सिंबल्स, इसी मैं को क्या, पूछूंगा और किसी से पूछूंगा, अगर हो सकता तो मैं तुमको बताने को प्रयत्न। इसी को क्या पगान वर्शिप बोलते हैं महाराज? पगान वर्शिप सिंबल जो होते हैं पहले जमाने में, जैसे आप कह रहे हैं वो जो ट्राइबल्स वगैरह होते थे, वो पगान वर्शिप. स्वामी विवेकानंद ने मोलोक का नाम किया है, मोलोक, पता नहीं बाकी नहीं मालूम। ठीक है महाराज. ओके, थर्ड क्वेश्चन महाराज जी, व्हाट आर द डिफरेंट बीज मंत्रस एंड व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस? जैसे दूसरे मंत्र होते हैं उसी प्रकार का है, कहते हैं बीज। बीज यानी क्या है, एक सीड, सीड होता है ना, तो सीड के अंदर सारा वृक्ष होता है, उसमें पोटेंशियलिटी होती है। उसी प्रकार से ये बीज मंत्र है जिनमें मैनिफेस्टेशन की, स्पिरिचुअलिटी के मैनिफेस्टेशन की काफी पोटेंशियलिटी होती है, उसमें क्षमता होती है, आगे चल के मैनिफेस्ट होंगे, इसलिए उसको बीज मंत्र कहते हैं। और बीज मंत्र विद रिंग क्रिंग टंग वंग, इस तरह के जो मंत्र हैं ये बीज मंत्र कहलाते हैं। तो उसमें जैसे ओम है, तो ओम जो है इतना पावरफुल है, उसके अंदर तो सारा ब्रह्मांड, उसका ज्ञान ही इतना अच्छा है, वो बड़ा है। उसमें उपनिषद एक जो ओम इत पर भी एक उपनिषद है, वही किताबें लिखी गई है। तो इस प्रकार से ये मंत्र होते हैं कि जिसमें बहुत सारी पोटेंशियलिटी होती है, और साधना करने से ये मैनिफेस्ट होते हैं, उसकी पोटेंशियलिटी मैनिफेस्ट होती है, इसलिए उनको बीज मंत्र। राइट महाराज जी, जो डिफरेंट आपने बताया, रिंग और त्वांग या क्या बोला आपने, तो इनके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं या दे ऑल सिग्निफाई द सेम थिंग? वही मैंने कहा कि अगेन दिस क्वेश्चन इज बिकम्स थियोरेटिकल। ओ अच्छा, उसको जानने का जरूरत। हाँ, you will know about it. It has absolutely no practical value. No practical value. Okay. तो किसी तंत्र वाले को पूछना पड़ेगा। तांत्रिक लोग करते हैं जो पूजा करते हैं, तो रिंग रिंग टंग 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 स्वाहा, अंग डंग टंग टंग स्वाहा, लंग मंग टंग टंग स्वाहा, वो सब, ये सब बीज मंत्र बोल बोल के स्वाहा करते हैं। तो ये बीज मंत्र जो है, जिस प्रकार दूसरे मंत्र है वो प्यूरिफाई करते हैं, इस प्रकार से वे प्यूरिफाई करते हैं। राइट महाराज।
तो ओम सभी Again, this question is more theoretical. हाँ महाराज जी, अच्छा ठीक है महाराज जी, समझ गया मैं। ओम तो था ही है, ओम तो सबके साथ है। हमेशा कर सकते हैं। हाँ महाराज, फोर्थ Next क्वेश्चन tantra sadhana was not approved by Sri Sri Thakur because of its dangers. Now we see that in various puja tantric rituals are followed. So how does that happen? जैसे हमारे मठ में भी पूजा होता है Most of the puja, देखो सुनो जी, जितनी पूजा होती है ना, अधिकांश सब वो तांत्रिक पूजाएं होती हैं। और ठाकुर ने तंत्र को निगारा नहीं है, उन्होंने वामाचार पोर्शन जो है तंत्र का, उसका वो किया है। He was against वामाचार। वामाचार also a तांत्रिक प्रैक्टिस है वो, लेकिन अच्छा। ठाकुर ने उसको उन्होंने उसकी निंदा की है, उसको डिसअप्रूव किया है, लेकिन बाकी को ठाकुर ने डिसअप्रूव नहीं किया। तो उसको क्लियरली डेफिनेटली देख के बताना तुम। मतलब वामाचार को क्या मतलब है महाराज जी? जितनी भी प्रैक्टिस हैं सब वामाचार में एक वुमन को लेके भगवान को सेक्सुअल रिलेशन से सेटिस्फाई करना, अच्छा, दैट इज वामाचार। राइट। तो वामाचार जो है उसमें सेक्स आ जाता है, इसलिए उसको ठाकुर ने उसको प्रैक्टिस किया, उन्होंने उसकी सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन उन्होंने डिसअप्रूव किया है कि उसमें लोग नीचे गिर जाते हैं। जी जी जी, जी ठीक है महाराज। इज इट क्लियर? हाँ, इट इज Yes. क्लियर महाराज जी। And last question, Maharaj. As per Bhagavatam, it is mentioned that the highest goal is attained in different yugas, जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, etc. तो कहते हैं सत्य में by meditation, त्रेता में by sacrifice, द्वापर में by worship और कलयुग में by japa. So all seem to be related, as japa again is part of meditation also, worship also. तो क्या कहना चाह रही है? थर्ड पेज 389 पे है, थर्ड पैराग्राफ में। नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तो मतलब क्वेश्चन ये है महाराज कि व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो जैसे कि वो कह रहे सत्ययुग में मेडिटेशन इज द प्रोसेस एंड द्वापर में वर्शिप इज द प्रोसेस, किंतु मेडिटेशन और वर्शिप में तो जप आ ही जाता है, तो फिर कली में स्पेशली जप को क्यों बोला जा रहा है? अरे त्रेता द्वापर की बात छोड़ दो, त्रेता द्वापर की बात छोड़ दो, तुम्हारा जप पे क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन जो जप तो है वो सभी में आ जाएगा, सभी में आ जाएगा। मेरा वही है कि जब सभी में आ जाएगा तो सेपरेटली क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए भी जप की जरूरत है, और द्वापर में नहीं पहले ना जब सुनो, अलग अलग उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा, त्रेता में क्या बोला? त्रेता में सैक्रिफाइस बोला। हाँ, सैक्रिफाइस बोला, वही यज्ञ बोला। और सत्य में तो बोला यज्ञ से करो, हाँ, जब आवे ना जावे क्या लेना देना उससे? उससे क्या संबंध है उसका? जब से क्या लेना देना संबंध है उसका? सैक्रिफाइस से करो, यानी यज्ञ से करो। यज्ञ करना है। सत्य में दे आर सेइंग मेडिटेशन, तो मेडिटेशन मतलब द पर्सन गोज डज मोर ऑफ मेडिटेशन, जप वगैरह ज्यादा करते ही नहीं है, फिर उसमें सीधा मेडिटेशन। नहीं, जप की बात छोड़ दो। व्हाई आर यू ब्रिंगिंग जप इनसाइड? ओके, जप इज डिफरेंट ना, जप लीड्स टू उसके मेडिटेशन। बाद दूसरा आया तुम्हारे उसमें, सेकंड लेवल क्या आया त्रेता में? त्रेता में तो सैक्रिफाइस आया, द्वापर में वर्शिप आया। हाँ, द्वापर में वर्शिप आया जी, है ना? हाँ, तो उपासना करो। अरे जप आवे ना जावे उससे क्या लेना देना तुम्हारा? हाँ महाराज। उसके बाद कलयुग में क्या आया? कलयुग में ओनली जपा। जपा। कलयुग में क्या आया? जपा। क्योंकि उनमें तुम बाकी चीजें नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि उसमें अब जमाना ऐसा आ गया है कि तुम वो चीजें आज नहीं कर सकते। जी जी, जैसे तो यज्ञ जप सबसे इजी है।
हाँ हाँ सबसे इजी है, इस जमाने में कर सकते हो, इसलिए उसको बोला है। ठीक। जी और जी अगर जब ठीक ठीक करोगे तो मेडिटेशन हो जाएगा। जी जी ठीक ठीक ओके। हर एक युग का एक अपना अधिकारी अवस्था है। जैसे सत्य युग में ना अधिकारी ऐसा होते है हैं। कि बाहर का एटमॉस्फेयर, मानव का मन, सब कुछ चीजें अलग अलग होती हैं। राइट, ठीक है, मैं समझ गया। माइंड ऑफ कलयुग लोगों का अलग माइंड होता है, जप सत्ययुग का माइंड अलग होता था। जी 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 बाहर ठीक है। के हमारे डिस्ट्रैक्शंस कितने ज्यादा हो गए हैं इस उम्र जन्म में। जी जी ठीक है महाराज जी, समझ गया। तो जपा इज द ओनली वे आउट फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग एंड दैट्स ऑल महाराज जी। प्रणाम महाराज। ये वो कहा गया है उसमें। हाँ, ठीक है महाराज। इतु घोष, इतु घोष। प्रणाम महाराज जी। यस, हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, इन ऑफरिंग एवरीथिंग टू गॉड वी कैन इंक्लूड एवरी आइटम bought for the household purpose and mentally offer it to God before we use it. मतलब क्वेश्चन यही है कि इन ऑफरिंग एवरीथिंग टू गॉड कैन वी इंक्लूड एवरी आइटम bought for the household purpose and mentally offer it to God before we use it? Yes. yes, 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 no Okay. problem. Second, Okay. Second question is how to perform mental worship very effectively. ऐसा है, इस किताब in this book also, in this article carefully you read, you will find some technique. And secondly, वो पूजा पद्धति एक किताब बंगाली में है। जी। पूजा पद्धति एक प्रकार की होगी, उसमें मानसिक पूजा पूरी दी हुई है। अच्छा, पूरी ठीक है। मानसिक पूजा दी गई है। और रत्ने कल्पितम, ऐसा सोचो कि तुम्हारा हृदय में भगवान, हृदय में कमल है, कमल पे भगवान बैठे हुए हैं। मानसिक मन ही मन जो सोचना है, सबका सब पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है, कई किताबों में अच्छा। मिल जाएगा। जी, ये बुक क्या बेलूर मठ मतलब रामकृष्ण मिशन में ही मिलेंगे या बाहर दुकान में भी? हाँ, बाहर भी मिल जाएगी, बाहर मिलेगी कि नहीं मालूम होगी, लेकिन पूजा पद्धति बंगाली में है या हिंदी में है, इसको इंग्लिश में सबका ट्रांसलेशन है। सब पूजा जो होती है ना रामकृष्ण मिशन में, उसमें सारी किताब में सब भी है उसमें। जी। तो उसमें जितनी पूजा की वो है, सब में उसमें दिया गया है कि बैठ के जब करना है तो पहले यानी मानसिक पूजा का सारा वर्णन। जी, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, meditation is considered as better than japam, but if japa is done carefully, whether it leads to meditation or not, will it give the same result? Means by japa? Yes, yes. Acha. Meditation, japa leads to meditation. Definitely. Japa leads to meditation, definitely. Japa is like putting a dots, 1, 2, 3, 4 dots. I have repeatedly told many times. Japa is like putting dots. Okay. And meditation is joining the dots. Oh. Join the dots becomes a line. Okay. Japa is like tuk 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 tuk. And when you join it, it becomes meditation. Japa leads to meditation. Yatishwaranji himself has told this. Okay. And the fourth question is, as Swami Vivekananda says, this is from the text, if the image stands for a god or saint, what is the adjacent meaning of god and saint here? The exact meaning. What Here, is the... you know, the G has a not capital G, it's a small G. Oh. The god means Indra, Varun. Carefully see, it is in the original Yatishwaranji is wo, and meditate that G is small G. नहीं, एक बार it है, is not capital G. महाराज एक हाँ? बार है, पहले लाइन में है कैपिटल जी
और उसके बाद हाँ, है पहली small लाइन g। में छोटा जी है, जी अच्छा, छोटा जी है, बाद में है बड़ा जी। ओ हाँ। अच्छा, ध्यान से पढ़ो तुम लोग। जी जी जी। अच्छा, तो वो छोटा जी तो मतलब छोटा जी है, देवताओं के यानी लिए। अगर इफ इट स्टैंड फॉर छोटा जी गॉड एंड सेंट, इट इज नॉट इफेक्टिव, दैट इज नॉट, दैट इज द सेंट। इसलिए ओ कृष्ण को अगर सेंट मानोगे या छोटा गॉड मानोगे तो नहीं होगा। ओ श्री राम कृष्ण इज फादर ऑफ गॉड, गॉड ऑफ गॉड्स, परमात्मा, परमहंस, परमहंस भी नहीं होगा। जी एक श्री राम कृष्ण को मेडिटेट करोगे, उसकी जी मूर्ति को अगर आप एक संत समझोगे ठाकुर को तो नहीं होगा। वो है सच्चिदानंद स्वरूप। कंसिडर द सेंट विच यू आर मेडिटेटिंग एज सुप्रीम स्पिरिट, दैट इज द आइडिया। जी। अब पढ़ो तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आ गया। क्या यस, हमने लिखा है कि लास्ट में पूछा है, कैन वी मीन इट एज चोजन डीटी, फॉर एग्जांपल श्री राम कृष्ण, तो हो गया उसका आंसर। No, no. When we no, what happens is our chosen deity. We understand chosen deity also a physical thing. श्री नो राम कृष्ण को भी हम फिजिकली समझते हैं। हाँ, लेकिन Our chosen deity must be considered as a symbol of परमात्मा। जी वो नहीं करते हैं। जी, समझ में आया। मतलब रामकृष्ण में देव को हम परमात्मा के हिसाब से ही समझेंगे, नॉट एज फॉर्म। এরকম figure সেরকম না, it is beyond that. So when you हाँ, meditate on that जी conscious, chosen deity इसलिए किया है तो विष्णु को ले सकते हो chosen deity, बट विष्णु को भी परमात्मा समझना पड़ेगा। जी जी, बट उनको चोजन डिटी भी समझ सकते हैं, परमात्मा भी समझ सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, जब तक अनफॉर्चुनेटली वी कंसिडर आवरसेल्फ टू बी बॉडी टू सच ए स्ट्रॉन्ग डिग्री, दैट्स व्हाई वी ब्रिंग दैट परमात्मा टू ए फॉर्म। यस यस, ठीक ठीक है, समझ गए। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। शिवानी, संजय, 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 हाँ, आवाज आ रही है महाराज? हाँ आ तो रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि मैं भी एक डार्क में बैठा हूँ, इमेज ठीक है? तो जी जी, इमेज बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट। ओके ओके, ठीक है। नाउ शिवानी, शिवानी देखो, संजय ज्वाइन कराओ तो। शिवानी मैडम ज्वाइन करी हुई हैं, अनम्यूट किया उन्होंने अभी। अच्छा, महाराज आ रही है आवाज? हाँ अब आवाज आ रही, प्रश्न अच्छा जी, करो। हाँ, my question is, when meditation is the direct step towards God, then why we people taught about the other rituals in our childhood? Only meditation should be taught from the childhood then? You see, this is a very important thing. You are in a class school, college school में हो ना? जी, और तुम बच्चों को सिखाओ ना। मैं तो सिखा रही हूँ, मैं तो डायरेक्ट ही सिखा रही हूँ, पर हाँ, बेसन है। मेरा ये हाँ कहना है कि जैसे उनको 15 मिनट बिना हिले डुले बैठना सिखाओ पहले, हाँ उसके बाद आंखें खोल के फोटो को देखना सिखाओ, जी, उसके बाद आंखें बंद करके सिखाओ। इतना तो किया जा सकता है बच्चों को, और डेफिनेटली बिल्कुल, करना चाहिए। आई एग्री टू मी यू। हाँ बिल्कुल, हाँ, यानी अनफॉर्चुनेटली नहीं करते हैं तो ये तो अपने बस का, अपने हाथ का नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का हाथ का है। कोई सोचता नहीं है। आप लोग, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, इट इज योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म पीपल, गवर्नमेंट, कि भाई एक तेरा जैसे आपके मॉर्निंग में प्रेयर होती है ना, वैसे 15 मिनट का मेडिटेशन या आधे घंटे का मेडिटेशन की क्लास भी रोज हुआ करे सबकी। वो महाराज हो रहा है। दैट इज हाँ, ओके ओके, देन इट्स ऑल। हो गया क्वेश्चन?
ठीक है। हाँ, okay. Next question is japa of Sanskrit mantras or Guru mantra while meaning is not known. Then is it useful? यस, ऐसा ठीक है। है। एक बड़े मजेदार एक वो किताब है, द वे ऑफ ए पिलग्रिम। हम्म तो वे ऑफ ए पिलग्रिम में एक पिलग्रिम गया था एक मकान में, तो वहां पे देखा बाइबल पड़ी हुई थी। हम्म तो तुम पढ़ते हो? तो कि मैं तो पढ़ता नहीं आता, मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो बाइबल क्यों रखी है? मैंने कहा मैं नहीं समझता हूँ बाइबल, लेकिन शैतान तो समझता है। तो शैतान नहीं आएगा, शैतान की गलत कंसेप्ट है। शैतान यानी क्या? सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। अगर आप जप करोगे बिना समझे हुए भगवान का जप और ध्यान जप करोगे, तो भी सबकॉन्शियस माइंड तो समझेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ए ठीक है पार्ट मैम। इज डूइंग गुड। हम्म, लेकिन अगर समझ के करो तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ठीक है। महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसके पहले एक और क्वेश्चन था तुम्हारा, कि यदि वो इसके जप बाद के है। हाँ हाँ, वो इसके बाद है। हाँ, अच्छा। If we put speakers at home and 24 hours mantras or bhajan sound in the home, is this purify the surroundings? Yes. डेफिनेटली, डेफिनेटली प्यूरिफाई। ठीक है। और हम तो ये भी सजेस्ट करेंगे कि सारे कमरे के अंदर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ठाकुर के, भगवान के, शिव के, विष्णु के और दूसरे भी है, माँ शारदा इत्यादि के सब फोटो लगा लो सारे कमरे में। जी, That will definitely purify your mind, atmosphere. ठीक है। This is a well known, दोनों चीजें जो हैं they are well known. जी महाराज। My last question is, how we can lay more stress on soul than on body, as soul is invisible and body is visible, and any problem happens with the body, not with the soul. So Yeah, though agreed. यानी पर तुमने अनइंटेंशनली कहा है, नहीं अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली। इंटेंशनली जो है हमारा इंटेंशन जो है बॉडी पे ही है। वी डोंट नो अबाउट द सोल। बकवास मत करो। सोल सोल की बात करते हैं, कोई नहीं जानता है। उसको करना पड़ेगा भाई विचार, विचार के द्वारा। थिंकिंग ऑफ गॉड, मेडिटेशन। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम जो है ना, वो वैराग्य, वो निर्वाण षटक, निर्वाण शतकम, हाँ, उसको प्रत्येक दिन चैंट करो। उसमें यही कहा जाता है, शिवा मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, न बुद्धि हूँ, वो नहीं हूँ, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम हूँ। ठीक है महाराज। ठीक है, हाँ ठीक है। दैट इज मॉर्निंग। और तुमने ये कहा था कि सिर्फ ओके, तो ठीक, अच्छा ठीक। रीता विश्वाल। रीता। Pranam Swamiji. Yes, हाँ Swamiji. भाई, चलो। What is meant by, in quotes, we are always creating our own god or gods. Page 386. How not to do this? इसमें क्या कहा है उन्होंने आगे, वो उसका पोर्शन पढ़ो। उसमें ये कहा है कि वे क्रिएट ए गॉड। बाद जब वो शिव जी की मूर्ति बनाने लगे तो उसके बदले वो हो गया, एक मंकी हो जाता है। शिव की मूर्ति के बदले बंदर की मूर्ति हो गई। तो उसमें क्या है, क्या है, व्हाट स्वामी जी ने क्या कहा है? You see, we create God according We to are what we always think creating ourselves to be. our. हाँ, so अब ये हाँ, ये this is, see, as long as we ourselves consider ourselves to be body, our God also will be have two hand body God और four hand God, तो वो भी ह्यूमन गॉड ही होगा। हम अपने आप को वुमन समझते हैं तो काली को बना दिया, हमारे अपनी देवी बना दिया। तो हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हैं, what we consider ourselves to be, like that they are. So change yourself first, that is no, otherwise you will not stop. Change, consider that you are Atman, then your concept of God will change. Otherwise we will go on imagining
different types of gods. Hmm. Again, your same Yes, yes. question. Thank you. Same question. What is your question? Okay. Those Swamiji has given enough hints to cultivate the right mood and attitude. Page 387, first para. I fail in doing so when there is overwork or tiring situations. Please tell me how to get the right mood and attitude No, in you these take the situations. second question. Take your original second question. Lo. First, second, karo. Page. Page 386 was my first question. What is meant by we are always creating our own god or gods? That you have answered. Page Actually, I have 83. interchanged. Question 2, 86. 86 hai. Then is page 387. Swamiji has said that you should cultivate the right mood and attitude. Page 83. 380. No, 83 nahi sir, Swamiji. 387, first para. 87, first para. Yes. Cultivate, yes, it said, cultivate the right mood and attitude. Right mood is created, huh? But how is to right mood created? This is your question. What is your question? Yes, yes, yes. Especially when the situations himself are is- tiring and You see, what you do is, if you are in such a situation, lot of work is there, so visualize it becomes very tiring the whole day. So what you can do is, before Yes. that is Yes, before you go to start work, meditate a little, 5-10 minutes. In the end, also think of God. In between, think of God. Brahmananji also says, they said, before you begin the work, remember God. At the end of work, remember God. In between, occasionally 5-10 minutes के लिए अलग चले जाओ. और बीच में इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है सब. For busy people, it becomes as you can understand. In yes, between, yes. there might be gap of 5-10 minutes. Sometimes 3 hours is a lot of time. Be very careful. Don't waste that. ठीक है? Yes, yes. Yes, Swamiji. Yes, Swamiji. I got it now. Then the third question is, please explain the process of visualization step by step. Can visualization be done before starting worship and japa? Should one visualize before doing mental japa? In this article, Maharaj has written a lot about visualization, isn't it? Yes, yes. Visualize yes, यानी कल्पना, imagine करना, visualization. Shri Ramakrishna की लीला. Modi ji is in the rear view mirror and don't worry. Going from his room to other place. Yes, Swamiji. Like that. You go on imagining these things. Got my point? I got it. Sorry. मैं बोल देता था, मैं भी बोलता था. Sorry, we should have. कहाँ आवाज कहाँ हो रहा है? डिस्टर्बेंस आ रहा महाराज, डिस्टर्बेंस आ रहा Somewhere आवाज हो रही है. मर गया. डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत. निवेदिता जी, आप चलो देख लीजिए, म्यूट कर लीजिए. हो गया? Your question is got? Yes, yes. Yes, I get it. So Fourth while question. in some, fourth question is, Leela Chintan. how to identify oneself as the soul
The mind keeps going back to the body. How to stop the mind from going back to the body? Shivani Vichar, ji by- also by, asked this no, question. You No, it is important, vichar. important question. Vichar, very important. yes, Swami. Repeatedly vichar karna padega. And I just told you, every day, morning and evening, twice chant Manobuddhi Ahankar Chitna Ninaham, Vairagya Shatakam. Chant it 2-3 times, twice a day, every day. You know that? Yes, I'm doing that. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Yes, you have Manobuddhi told Ahankar me. Chitna Ninaham. Hmm. Chant it every day. Okay? Yes, Swamiji. Okay. Thank All you, your questions Swamiji. gone? I think I've got all my questions. Yes, Dilip Swamiji, bhai. yes. Bhai. जी हाँ, प्रणाम महाराज. My first question, whatever is especially dear to you be offered to God. In Kathopanishad also said so. Is this offering is an yajna? इसमें और उसमें फर्क क्या Yes, रहेगा? yes. नहीं फल होगा. जैसा यज्ञ का पहले जमाने में यज्ञ करते थे, आप मनीमान अगर करोगे ना तो ये यज्ञ होगा. कई प्रकार के यज्ञ होते हैं. जी. तो यज्ञ केवल के अग्नि में डालने वाला यज्ञ नहीं होता. जी. कई प्रकार मानसिक यज्ञ भी होते हैं. ये जब भी यज्ञ ही है. हाँ. भगवान का ये नहीं, किसी की सेवा करना ये भी यज्ञ है सब. जी. अगर तुम निस्वार्थ रूप से किसी को करते हो, ये देते हो, तो ये यज्ञ हुआ. जी. डेफिनेटली यज्ञ हुआ. वो यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में डालना नहीं होता है. नहीं, कठोपनिषद में ये कहा है कि सब चीजों छोड़ दो, दे दो, दूसरे को दे दो. यहाँ पे हम देते नहीं से ऑफर गॉड को करते हैं. नहीं एक ही चीज हुई. ओके. जी. हाँ. राइट महाराज. My second question is, what is the difference between dualistic and qualified monistic system of Vedanta? अच्छा ठीक. Dualistic means द्वैतवाद. जी बिल्कुल. Qualified monistic is विशिष्टाद्वैतवाद. हाँ. तो द्वैतवाद के तो बहुत सारे हैं. विशिष्टाद्वैत तो है रामानुजाचार्य ने समझ के रहा था. जी. अद्वैतवाद है शंकराचार्य का. तो विशिष्टाद्वैत देखो, ये समझ लो दोनों को. ये हमारा शरीर है ना. हाँ. तो शरीर में उंगली अलग है, घुटना अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, आंख अलग है. ये अलग अलग हो गए ना. हाँ. तो ये द्वैत हुआ. यस. लेकिन ये सारे शरीर के अंग हैं. हाँ. शरीर के दृष्टि में एक है, सब है कि नहीं? जी. शरीर के दृष्टि में तो सब एक है ना. हाँ. हाँ. हाथ भी जो है वो मेरे शरीर का ही अंग है ना. जी. जी. हाथ भी तो अंग शरीर का ही है ना. हाँ. तो द्वैतवाद कहता है कि ये उंगली, हाथ इत्यादि अलग हैं. हाँ. विशिष्टाद्वैतवादी कहता है कि ये सब जो है वो शरीर के अंग हैं. जी. अलग भी हैं लेकिन शरीर के अंग. शरीर के. अच्छा आगे देखो, आगे चलो. ये पृथ्वी है, ये संसार है. ये पृथ्वी है, आकाश है, समुद्र है, नदी है, पहाड़ है, फिर ये घर मकान है. ये सब अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है कि नहीं? अलग है ना. बिल्कुल अलग है. दिलीप भाई बोलो. हाँ बिल्कुल अलग है महाराज. अलग है ना. हाँ बिल्कुल अलग है. लेकिन पृथ्वी के तो अंग है ना. पृथ्वी के रूप में एक ही है. हाँ बराबर. पृथ्वी के रूप में एक हो गई ना. तो ये हुआ. मतलब ये है द्वैतवाद के अनुसार. हाँ. ईश्वर, जीव और जगत ये सब अलग हैं. हाँ. विशिष्ट अद्वैत कहते हैं कि ईश्वर, जीव, जगत ये सब ईश्वर के साथ एक हैं, लेकिन उसके साथ में अलग भी हैं. जी. उंगली अलग भी है, अंगूठा अलग भी है, और वो शरीर का अंग भी है. अच्छा. जी. समझ गए? समझ गए जी महाराज. बिल्कुल. यस. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sun is a good symbol of God and was once widely worshipped all over the world. Then what were the reasons that now it is not? And it is not stopped. No, but गंगा किनारे जाओ तो रोज सुबह सुबह आप देखेंगे स्नान करके और जल लेके और गंगा उसको भगवान को देते हैं. बराबर.
कुछ लोग अभी भी सूर्य उपासना चलती रह रही है। जी और अब तो नए नए ऐसा है ना कि पहले जमाने में केवल सूर्य था, जी उसके बाद तो राम भी आ गए, कृष्ण भी आए, हनुमान भी आ गए, हाँ अल्लाह भी आ गए, ईसा भी आ गए, राम कृष्ण भी आ गए, इतने जी सारे आ गए, तो बेचारे सूर्य क्या करेंगे? हाँ, नए नए और भी देवी देवता आ गए ना, उनकी भी तो पूजा होगी। जी अच्छा, यस दैट इज द रीजन। ओके चलो जी 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 बराबर। नेक्स्ट, out of the 4 steps of practicing of Brahman, the lowest of all is external worship with the help of an image. Now my question is, why so many temples are there and idols are there, which includes the temple of the trio, regular in every center. In every center, the Mahant and other sannyasis and the Mahatmas go there and regularly worship along with the followers like us. हाँ, तो क्या हुआ? तो बिकॉज वी आर एट लोअर सेंटर, लोअर लेवल, सीधी बात है। No, Maharaj. So we are worshipping there means we are at a lower level. हाँ, yes. अरे, we consider ourselves as body, isn't it? Yes. We don't consider ourselves as soul. No, we consider body. We are Definitely. already at this level. So you must also have God as a physical God. Yes. We eat. Yes. So we must also God भगवान की पूजा करना है तो उसको भोग लगाना पड़ेगा। हाँ हम स्नान करते हैं तो भगवान को भी स्नान जल देना पड़ेगा। जी। हम कपड़े पहनते हैं तो भगवान को भी कपड़ा पहनाना पड़ेगा। तो ये लोअर लेवल लेवल पे है, हम सब उस लोअर लेवल पे हैं, इसलिए हमारा भगवान भी लोअर लेवल पे रहे। अच्छा, भगवान भी ऊपर आओगे, ध्यान तो कर नहीं पाते हो जी। जब भी कितना करते हो, कितना स्तोत्र पाठ करते हो, मेंटल लेवल पे नहीं आए, वोकल मुंह के लेवल पे नहीं आए। प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि दूसरा है, तीसरा मानसिक पूजा है। जप स्तोत्रादि भी नहीं करते हो, दिन भर तो संसार में लगे हुए, उस लेवल पे आओ तो फिर तो छोड़ दोगे, उसके बाद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तो मत जाओ मंदिर में जी। अगर स्तोत्र पाठ करके रह सकते हो, वाचिक पूजा जप स्तोत्र आदि करके रह सकते हो, तो फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान बढ़िया कर सकते हो, 8-10 घंटे कर सकते हो, तो मंदिर क्या जरूरत? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो जिस लेवल पे है उसी के लिए है। तो सब हम सभी लोग लोअर लेवल पे हैं बाबा, ज्यादा तुम ऊंचा मत समझो। तो 1-2 लोग होते हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं। तो विज्ञानानंद जी थे तो कभी मंदिर नहीं, पूजा वूजा नहीं, दिन रात भगवान के भजन में डूबे रहते थे। ऐसे कितने लोग हैं बोलो जी। बहुत ऊंचा मत समझो। हाँ, सबके सब हालत यही हाल है हम जी महाराज। मेरा दूसरा सवाल है, स्वामी जी सेज ए गॉड और ए सेंट एंड वन गॉड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? जो अभी आपने बता दिया, उसको डिस्कस हो गया ना अभी। हाँ, अभी डिस्कस हो गया। When the examples are given of Lord Ganesh and Durga, then why not other devatas and like Krishna and Mahadev or devis or deities? Why there are distinction amongst them? There are no other devi and devatas are immersed in the river. महाराज ये क्या चीज है? क्यों इसका? दोनों देवी, अरे ये इमर्शन का एक तो दृष्टांत दे रहे हैं। हाँ, पर ये दो देवी देवता हैं जिसके है। तो गणेश की मूर्ति को पानी में डालते हैं और दुर्गा की मूर्ति को पानी में डालते हैं, उसी का तो दृष्टांत देंगे। दूसरा दृष्टांत क्या देंगे? नहीं, पर और कोई है ही नहीं। किताब में क्या लिखा है? इमर्शन की बात लिखी है ना जी, उसी को समझाने के लिए इमर्शन की बात लिखी है। तो गणेश और दुर्गा का ही वो तो उत्तर जवाब देंगे। गणेश और दुर्गा, क्योंकि आप कृष्ण की मूर्ति को तो बनाते नहीं है और डालते भी नहीं है पानी में। नहीं महाराज जी, मेरा सवाल ये था कि ये क्या कारण कि ये दो मूर्ति के लिए इसको बनाना और इमर्स करने का ये धर्म कहाँ से आया और क्यों आया, जबकि बाकी कोई मूर्ति के लिए नहीं था?
ये दो के लिए क्यों हुआ? अच्छा सुनो सुनो, ये सवाल। ये जो बंगाल में इस प्रकार का चालू प्रयास ये है हाँ कि सब लोग नहीं कर पाएंगे। जी, इसको बना दिया, गणेश की मूर्ति चालू की थी बाल गंगाधर तिलक ने जी की थी। इससे क्या है, अब गणेश सब लोग, हम भी करते थे, नहीं जी। तो हम नहीं कर पाते थे। हम घर में बचपन में गणेश रखते थे, तो हाँ वो सभी गणेश, इतने गणेश हो गए, सबको खुशी हो गई कि मैंने भी गणेश दिया है। वो 10 दिन तक गणेश रखा था हमने, खूब आनंद हुआ था। तब वो बाकी तो नहीं कर सकेंगे, रोज तो नहीं करने की हिम्मत नहीं है, संभव नहीं है। जी। अब नहीं करेंगे सब लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? हाँ। अरे कुछ दिन करो, 7 दिन करो, सब लोग करो। अच्छा। अब उसके बाद क्या करना है, उसको रखना तो है नहीं। हाँ। इसलिए मिट्टी के बना के उसको करके और उसके बाद फिर तो हम्म, इसी तरह का दुर्गा का है। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी। Yes. Next question. Mantra given to us and here written in the article, his meaning is different. जो हमें मंत्र हाँ? दिए जाते हैं नारायण, हाँ हाँ, ये है पेज 384 पे। हाँ Yes. In refined types of worship, a mantra like Om or some divine name serves as the symbol. A mantra literally means a sound of symbol which, when repeated and reflected on, frees the soul of from bondage. अच्छा, बोलो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है इसमें? ये मंत्र और जो हमें मंत्र दीक्षा दी जाती है, ये एक ही चीज है क्या? हाँ, मंत्र जो है वो मंत्र जो है, लाइक कोई भी मंत्र जो है वो भगवान का नाम है। यस। वो प्रतीक है, सिंबल है। अच्छा। जैसे दिलीप, हाँ दिलीप से आप, दिलीप जो है वो दिलीप का सिंबल है, दिलीप का प्रतीक है, दिलीप का नाम है। जी। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जी जी महाराज। तो महाराज एक सेकंड, उसके बाद वाला तो प्रश्न ये है, तुमने आत्मा परमात्मा गॉड वो एक ही है भाई। नहीं, ये महाराज जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये है, शब्द प्रतीक के रूप में ओम अखंड ब्रह्म का प्रतीक है, जबकि अन्य नाम अथवा मंत्र उससे परमात्मा के खंड या रूप विशेष के प्रतीक है। विभिन्न तांत्रिक देवताओं के विशेष। जी ये मेरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस। ओम के बाद नीचे वाला जो है, उसके ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला तुमने पढ़ा, यानी उसके नीचे वाला जो है वो नहीं, ओम जो है वो हाँ, व्यापक परमात्मा का प्रतीक है, सर्वव्यापक परमात्मा का प्रतीक है। हाँ, और छोटे राम जो है तो छोटा है, दुर्गा नाम जो है वो दूसरा है, छोटे 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 एक एक रूप के प्रतीक है। जी। लेकिन ओम जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, सर्वव्यापी परमात्मा। जी। तो छोटे मोटे मंत्र को न करते हुए सिर्फ ओम मंत्र की ही यदि हम जप करें, अब यदि कर सको तो करो, लेकिन तुम्हारा मन जो है वो तो शरीर में लगा हुआ है। नहीं, मेरा पूछने का सवाल ये था महाराज कि मंत्र दीक्षा में सबको अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं और ये ओम यहाँ पे लिखा है कि ओम जो प्रतीक है सर्वोच्च है, तो सबको दीक्षा में ओम क्यों नहीं दिया जाता? जी इसलिए कि तुम कृष्ण के भक्त हो। अच्छा जी जी जी। अच्छा, कृष्ण के भक्त, इसलिए तुमको कृष्ण का मंत्र दिया। बड़ा जी महाराज, समझ में आ गया। एब्सोल्युटली राइट जी महाराज। In the life of Christ, a Chaitanya or a Ramakrishna, we find that to all of them, God was the highest reality. Does it mean that God is supreme and not Atman or Paramatma? अरे ये गॉड आत्मा परमात्मा में एक ही चीज के नाम है भाई। गॉड आत्मा एक ही चीज के नाम है। यहाँ पे लिखा है इन द लाइफ परमात्मा, हिंदी
परमात्मा हिंदी नाम है, आत्मा हिंदी नाम है, गॉड जी। अंग्रेजी नाम है, बस और कुछ नहीं फर्क। महाराज पूरा ये समझ में नहीं आ रहा है. When we study the life of a Christ, a Chaitanya or a Ramakrishna, we find that to all of them, God was the highest reality. To all of them, God was the highest reality. जी. अच्छा ठीक है, तो प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जब इनको स्टडी करते हैं तो the God was the highest, इनमें ये गॉड है या गॉड इज द हाईएस्ट रियलिटी और दे आर गॉड? उनके लिए भगवान जो है वो सबसे बड़े थे. क्राइस्ट को भी भगवान, क्राइस्ट भी भगवान को सर्वोच्चतम मानते थे. तो मेरा सवाल वही है कि भगवान और कोई है, ना कि क्राइस्ट इज अ गॉड, चैतन्य इज नॉट अ गॉड और रामकृष्ण इज नॉट अ गॉड. दैट इज माय क्वेश्चन. यही जी जी मेरा ये सवाल. राइट राइट महाराज. So there is some supreme power above all this Christ, Chaitanya and Ramakrishna. जी हाँ ठीक है. ओके थैंक यू. जी महाराज प्रणाम. एक अब आगे सवाल है, टू वर्शिप द गॉड हु ड्वेल्स इन हिज ओन हार्ट, बट बाय वर्शिपिंग गॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम, then name and image automatically dwells in the heart for all the time. Then how to leave them? हाँ ये कहा गया है यहाँ पे कि आपको इसको भी छोड़ना है. अब ये कैसे छोड़ सकते? पेज नंबर बोलो. 386. हाँ जी 386. यस महाराज. हाँ चलो बोलो. हाँ ये जो लिखा हुआ है, फॉर वन हु अटेन्स द साल्वेशन वर्शिप ऑफ एन इमेज इज ए hindrance and brings about rebirth. Therefore, the man of renunciation should worship the God who dwells in his own heart. He should give up all external worship. How is it possible to leave it? External worship. तुम्हारा प्रश्न क्या है? जी ये लिखा है इसके अंदर कि आपको इसको भी छोड़ देना पड़ेगा. हाँ हाँ तो कैसे संभव हो पाता है जब एक बार हम इसके एडिक्शन में आ जाते हैं? वो जितनी शराब पियो ना, हाँ लेकिन उससे ऊपर की शराब आ जाती है तो एडिक्शन छूट जाता है. यानी ऑटोमेटिक छूट जाता है. हाँ साधना करते रहो, आगे बढ़ते चले जाओगे तो पीछे की नीचे की चीज छूट जाती है. हाँ ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा जीवन मुक्त पुरुष के बंधन तथा पूर्ण जन्म का कारण होती है, अतः सन्यासी को हृदय परमात्मा की उपासना करना चाहिए तथा बाह्य पूजा त्याग कर देनी चाहिए. तो क्या हमने शुरू से यदि बाह्य पूजा न करें तो क्या तकलीफ है? तो मत करके देखो ना. नहीं यानी ये संभव नहीं हो पाता क्या? नहीं होता है तो बहुत सारे लोग, जैन लोग तो नहीं करते, कुछ लोग जैन लोग जो स्थानकवासी लोग नहीं करते बाहर पूजा. मेरा वही सवाल था कि स्थानकवासी लोग नहीं करते तो बहुत सारे लोग नहीं, और मोहम्मदन में भी वो नहीं है सिंबल. अब मस्जिद में कोई सिंबल हाँ नहीं है. यस तो दे कैन. ठीक है ठीक है ठीक है. बाहर पूजा बहुत सारे लोग नहीं करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा नहीं महाराज जी नहीं प्रॉब्लम नहीं. मेरा पूछने का अर्थ ये था कि ये करने के बाद इसको भी हमें छोड़ना पड़ता है, तो यदि ये न करा जाए तो एक स्टेप हम ऑलरेडी छोड़ देंगे, संभव हो तो. वो ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप देखना पड़ेगा. अच्छा. कुछ लोग शुरू से नहीं करते, कुछ लोग शुरू से करते हैं और बाद में छोड़ते हैं. अच्छा जी. तो अपने ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है. नहीं यानी ये तो बचपन से यदि हमें ये ज्ञान हो जाए तो हम अपने बच्चों को शुरू से ये संस्कार दें कि कमरे के अंदर कोई भगवान की मूर्ति नहीं लगेगी, कोई पोस्टर्स नहीं लगेगा, और डायरेक्ट यू स्टार्ट. पॉसिबल?
हाँ, तो जो कमरे में भगवान की मूर्ति और पोस्टर लगाने से जो लाभ होगा वो भी उनको नहीं होगा, याद रखो। जी स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हाँ एक आते थे, उनके शिष्य आए थे, जी तो उनको उन्होंने कहा कि तुम पूजा करो, हाँ क्योंकि मुझे तो अच्छी नहीं लगती पूजा। कि नहीं, जी मैं कह रहा हूँ करो। हाँ कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। कि नहीं, करो, ब्रह्मा जी गुरु बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने शुरू किया। शुरू करते ही उनको इतना अच्छा लगा, जी इतना मन अच्छा लगा, मन अच्छा हो गया, ध्यान अच्छा हो गया। उसके बाद तो सारे जीवन बूढ़े हो गए तब तक बराबर करते रहे, यस उनको अच्छा लगता। जी तो ऐसा महाराज है, जी जी डॉगमेटिक मत बनो। जी किसी को ठीक लगेगा, किसी को ठीक नहीं लगेगा। ओके ऐसा अच्छा लगेगा कि मेरे को बिना उसके काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ऐसा ये भी नहीं भी हो सकता है। जी जी तो करके देखो, लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे ऐसा ध्यान भी अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, ये भी हो सकता है। महाराज अब यानी बहुत सारे मुसलमान हैं, वो अगर नहीं करते हैं, उनके यहाँ नहीं करते हैं, कोई हाँ बात नहीं, लेकिन वो अगर करते होते कुछ लोग तो उनको बहुत फायदा अच्छा जी होता। जी बराबर जी जी हाँ, महाराज अब काबा में जाते हैं तो काबा में भी एक प्रकार की हाँ परिक्रमा और ये चूमना उसको वो सब होता है, तो किसी न किसी प्रकार का तो जी होता है। जी महाराज जी जी महाराज नेक्स्ट सवाल है the aspirants who are not drawn towards any particular symbol or image may meditate in some higher center of plane of a consciousness on the divine light that permeates not only one's own being but the whole universe of men and the things. Does it mean इसका मीनिंग क्या महाराज? ये कौन सा पेज का है? हाँ, ये 387 पर है। Last paragraph. Those who are not drawn towards any particular symbol and image. Higher center of plane of consciousness on the divine light and Yes. that permeates not only his. हाँ ठीक है, वो क्या है कि जो अगर मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते तो हाँ आप अपने सिर के ऊपर भूमध्य में या हृदय में या गले में जी। ज्योति का ध्यान। अच्छा बस हाँ यही राइट 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 जी महाराज। हो गया। नहीं 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 महाराज, एक सवाल और बचा है। Everywhere it is said you have to leave roop or form, but here it is said to keep holy form. Page number 391. What is holy form? अरे एक रूप। जी एक रूप महाराज, ये हिंदी में लिखा है, जप और ध्यान को समाप्त करने के बाद भी भक्त को अपनी चेतना के केंद्र को पकड़े रखना चाहिए तथा सदा उस उच्च मनोभाव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक साधक का चेतना का एक निश्चित केंद्र, एक निश्चित मंत्र और ध्यान के लिए एक निर्धारित देवी रूप, ये तीन बातें होना चाहिए। यानी दे आर इंसिस्टिंग फॉर देवी रूप। कोई ईश्वर के लिए हमको ये फोर्स करते हैं। अरे देखो, कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम हुआ ना। हाँ कृष्ण का नाम तो समझते हो? जी तो कृष्ण जी का रूप समझते हो? तो हाँ, और ये कृष्ण का रूप देवी रूप हुआ, डिवाइन फॉर्म हुआ, सीधी बात। ओके महाराज, अरे डिवाइन फॉर्म यानी डिवाइन दिव्य रूप हाँ, भगवान का रूप। तो प्रत्येक का एक भगवान का रूप होना चाहिए। तुम्हारा कृष्ण नाम तुम्हारे लिए कृष्ण का नाम है और तुम्हारे लिए कृष्ण का रूप है। खत्म हुई बात। बराबर, ये बात खत्म हुई। ये होना चाहिए। कुछ जगह यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार से ध्यान करो, और अभी ऊपर ये बताया था कि इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो नहीं, मूर्ति पूजा को छोड़ने की बात, पूजा की बात छोड़ने का है। नहीं अरे मैं रामकृष्ण की पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन रामकृष्ण के रूप को तो ध्यान करता हूँ। जी, कृष्ण का रूप का ध्यान करो। अच्छा जी जी जी, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसको फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ। ओके राइट जी महाराज।
अब महाराज जी एक जनरल ये सब पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद एक जो दिमाग में प्रॉब्लम खड़ा हुआ है वो ये है कि बाह्य पूजा, मूर्ति पूजा, भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। ये समझ में आया है जो मुझे, हमें उससे ऊपर उठना होगा। अब ये समय कौन सा होगा और ये कब समय आएगा ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये पूजा करते करते व्हेन वी शुड लीव इट वी डोंट नो। आगे ये बात है, यही बात स्वाध्याय में भी लागू होती है, पूजा में लागू होती है तो स्वाध्याय में भी लागू होती है। और जब स्वाध्याय में लागू होती है तो मेरा सवाल कंटिन्यूएशन में आगे ये है कि हम हर संडे टॉक्स के लिए तैयार रहते हैं, सैटरडे फ्राइडे नाइट से तैयार हो जाते हैं कि संडे सुबह 8:45 बजे बैठ जाना है, दिमाग में वही घूमता रहता है। संडे टॉक्स कंप्लीट होने के बाद शाम तक हम देखते हैं व्हाट्सएप कि नया आर्टिकल आया है या नहीं आया है, तो उसके ज्ञान के अंदर हम घूम जाते हैं कि इसकी स्टडी करो, कुछ समझो, कुछ सवाल करो। तो ये तो एक जात का हमें इतना एडिक्शन हो गया कि हम इसके बाहर जा नहीं सकते, ये एक नशा हो गया। अब इसको छोड़ना कब और क्यों और कैसे? क्योंकि उसके बिना हम ऊपर जाएंगे ही नहीं। हमने आपको इसका हम जवाब दे सकते हैं, हम अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं तुम्हारा। हमें ब्रह्मेश्वरानंद जी को कब छोड़ना है, ये गुरु को कब छोड़ना? हम बता देते हैं तुमको, हम बता देते हैं ना। ब्रह्मेश्वरानंद जी की बात नहीं करते हैं, हम सभी की नीतियों की बात करते हैं। वो अगले जन्म में छूट जाएगा, इस जन्म में चलने दो, तुम काहे को दिक्कत करते हो? प्रणाम, बस बस महाराज प्रणाम। चलो देवाशीष, देवाशीष। यस महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ, तुम्हारा एक ही क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। हाँ, वो ये क्वेश्चन था महाराज जी। हाँ, do we have to imagine the waves, water and the ocean in meditation and try to visualize the same? The idea we could conceive, but how to practice it? Do we have to keep on thinking the same? The distinction between the individual and the universal, the microcosm and the macrocosm is lost. The absolute, the one without a second remains. ये क्या हमेशा keep on thinking? सुनो 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 सुनो, ऐसा है कि मैंने जितना यतीश्वरानंद जी का पढ़ा है, और हम लोगों ने जो, वो तो गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, मैंने कई बार उनका गाइडेड मेडिटेशन सुना है, तो उसमें वे वेव और ओशन की बात कभी नहीं करते थे। वो कहते थे कि एक लाइट है, सोचो कि सर्वव्यापी एक प्रकाश है, उस प्रकाश ने, उसका ध्यान करो। उसके बाद सोचो कि इस प्रकाश ने तुम्हारे इष्ट का रूप ले लिया है, एक प्रकाश का एक बड़ा पुंज हो गया है, तो वो तुम्हारे इष्ट हैं, और तुम जो है वो छोटा लाइट का पुंज हो। उसके बाद तुम्हारा वो जो बड़ा लाइट है, उसके अंदर से तुम्हारे इष्ट का रूप निकला है, और तुम भी उसके अंदर से निकले हो। दोनों का ध्यान, अपने रूप का ध्यान करो, इष्ट का ध्यान करो, और उसके बाद में अपने आप को और इष्ट को, दोनों को उस प्रकाश में विलीन। तो ये मेडिटेशन तो वे बताते थे, लेकिन वेव और आकाश इसका मेडिटेशन कभी किया हो ये मेरे को याद नहीं। अच्छा। मतलब ये है कि इसको विचार के लेवल पे ही है, मेडिटेशन के लेवल पे ये नहीं। अच्छा, तो विचार करते करते ये कल्पना है, ये विचार करते करते इमेजिनेशन है। अरे भाई, ये तो विचार की बात है। हाँ, अरे विचार और कल्पना में अंतर है। अच्छा, मैंने विचार करके देखा है कि लहर जो है वो पानी के साथ एक होती है, लहर और पानी एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा एक है। That's all. नहीं, ये समझ में आ गया महाराज, समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिस का, जब जहाँ प्रैक्टिस में तो यही देखना पड़ेगा, हमेशा सोचना पड़ेगा, निरंतर सोचना पड़ेगा, सुबह शाम सोचना पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आकार। इसी चीज को बार बार सोचना पड़ेगा, और क्या। अच्छा, ये तो मैं एक कर लूंगा, लेकिन अभी आपने बताया कि ज्योतिषानंद जी महाराज जी बोलते थे रोशनी के बारे में, उसके बाद रोशनी टेक्स द फॉर्म ऑफ द इष्ट देवता श्री रामकृष्ण एंड ये कल्पना कर सकते हैं ना, ये हमेशा एवरी डे कल्पना कर सकते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। हाँ, यस, सो दैट इज व्हाट आई से, दैट वेव के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम।
यानी उसकी कल्पना यानी मेडिटेशन ही तो हुआ। तो वो अच्छा मेडिटेशन जो है वो आई डोंट नो अबाउट इट, अच्छा क्योंकि वो कभी कराते नहीं थे। अच्छा, ठीक है महाराज जी, समझ में आया। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, आपने अभी अभी बताया कि जीसस क्राइस्ट का ऊपर में परब्रह्म है, या श्री रामकृष्ण के ऊपर में परब्रह्म या सुप्रीम बीइंग है। तो लेकिन जीसस ने खुद ने बुलाया, मी एंड माय गॉड, इफ यू हैव सीन मी, यू हैव सीन द गॉड, यू हैव से, माने मी एंड माय फादर इज सेम। तो भगवान श्री रामकृष्ण, आई मीन ये कंफ्यूजन ये इसलिए आता है कि उस, ठीक है, उस रूप का नहीं, उसका बियॉन्ड दैट सच्चिदानंद, ये कैसे देखो 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 देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो जाया करते थे ना, 90% टाइम समाधिस्थ रहते थे। हाँ और श्री रामकृष्ण का रूप में क्या कोई दम तो था नहीं, हाँ यानी दुबले पतले थे, और दाढ़ी हाँ। थी, कोई बहुत बड़े कृष्ण जैसे राम जैसे कोई रूप वाले तो नहीं थे नहीं। हाँ फिजिकली तो उसमें कुछ दम ही नहीं है श्री रामकृष्ण के बॉडी में। हाँ लेकिन जब समाधिस्थ हो जाया करते थे तो वे आनंद और चैतन्य से भरपूर हो जाते थे। हाँ कल्पना करो कि उसके पीछे क्या है, एक परमात्मा ही तो है। श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ से जो श्री रामकृष्ण है, उसमें फिजिकल फॉर्म तो कुछ नहीं है, उसके पीछे सब चैतन्य है, आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद ही है। Isn't it? This is how try to go for to the आनंद सच्चिदानंद में। और आनंद सच्चिदानंद, आनंद का तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। और सच्चिदानंद क्या है कि जैसे आकाश है, तो एक जैसा जिसे है सर्वत्र व्यापी चैतन्य, तो उसको आप आकाश के रूप में ही तो चिंता कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। प्रकाश सारे सर्वत्र प्रकाश विद्यमान है, इतना ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समझ में आया मुझे। हाँ महाराज, एक चीज बताऊं, पूछूं मैं एक चीज, ये जब हम प्रे करते हैं महाराज जी, तो श्री रामकृष्ण फोटोग्राफ के सामने में ही प्रे करते हैं, लेकिन जब मैं फोटो नहीं रहता है तभी भी अगर मैं प्रे करूं तो दैट प्रे रीचेस टू हिम। हाँ, क्वेश्चन फोटो का तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैंने यूजुअली जब प्रे करते हैं तो भगवान का सामने में प्रे करते हैं, लेकिन जब फोटो नहीं है, चलते फिरते या कहीं पर भी मन में कुछ आया, या कोई ऐसा कोई विपत्ति या कुछ आया, तो मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, तो एट दैट टाइम दैट वो हमेशा इज नॉट नेसेसरी फीलिंग ए प्रेजेंस, यानी यू डेफिनेटली फील ए प्रेजेंस, इजंट इट? यस, प्रेजेंस फील करके प्रार्थना करो। हाँ, although we know that he सर्वव्यापी है। ओके, बालसुब्रमण्यम, ओके हो गया। हाँ, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। बालसुब्रमण्यम, आर यू देयर? बाला, Balasubramaniam is not there, no? No. He's not. Satish, प्रणाम महाराज। हाँ भाई बोलो। First question, Maharaj. What is this Aham Graha Upasana? A method by which the worshipper identify himself with the object of worship, that is Brahman, and meditates on his self. ऐसा है, अहम ग्रह उपासना में क्या होता है कि अगर राम की उपासना कर रहा है तो सोचता है कि मैं राम हूँ। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ध्यान करके मार्ग बंद करके ये सोचना कि मैं ब्रह्म हूँ। डिस्टर्बेंस आ गया, मैं राम हूँ, मैं या फिर मैं राम समझ गया। ओके, समझ गया। नेक्स्ट महाराज। निवेदिता, ये फोन बंद करो, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, हाउ डज वन रिलेट प्रतिमा उपासना or meditation on form as deity, which was chosen deity, with meditation on formless, that is all pervading spirit? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है
कि हम जो उपासना करते हैं, श्री रामकृष्ण की उपासना करते हैं, तो उसको ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस के साथ कैसे उसको रिलेट करना? ऐसा है कि विचार के द्वारा। तुम्हारा जब जप करते हैं विचार रहना चाहिए तब? नहीं, उसके बाद में प्रतिमा उपासना सच पूछा जाए तो अभी मैंने जो कहा ना कि और परवेडिंग कॉन्शियसनेस के साथ में ना, तो यहाँ जितने भी हमारे यहाँ प्रतिमा उपासना है उसमें जब बैठता है भक्त तो सबसे पहले यही सोचता है कि सर परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा ने सामने मेरे पास जो रूप है ना उस पे उसका रूप ले लिया है, परमात्मा ने मेरा भी रूप ले लिया है। ये परमात्मा जो है ये प्रतिमा जो है उसमें है विद्यमान है, मुझमें भी विद्यमान है। और ये जिन उपासनाओं जिन जिन फूलों से मैं उपासना कर रहा हूँ उसमें भी परमात्मा विद्यमान है। ऐसा सोचना पहले सोचना पड़ता है और उसके बाद में वो उस फूल को उठा के परमात्मा रूपी फूल उठा के परमात्मा रूपी प्रतिमा के ऊपर डाल देते हैं। जी महाराज। उसके बाद में जब पूरी पूजा खत्म हो जाती है तब प्रतिमा फिर प्रणाम करता है कि प्रभु ये प्रतिमा में आए थे परमात्मा, वो चले गए। दुर्गा पूजा में भी यही करते हैं। दुर्गा पूजा की मूर्ति जब आती है तो पहले यही सोचते हैं, तो पत्थर की मूर्ति ना मिट्टी की मूर्ति होती है, तो पहले तो मिट्टी की है तो उसने कैसे पूजा करेंगे। तो पहले सर्वव्यापी परमात्मा उसने दुर्गा देवी का रूप धारण किया, वो देवी इस मूर्ति के अंदर आ गई है, मैंने उसकी पूजा कर दी है, मुझमें भी वो आ गई है और दोनों को पूजा करने के बाद में फिर दोनों को विलीन कर दिया। इस प्रकार से प्रतिमा पूजा और फॉर्मलेस मेडिटेशन को दोनों को मिलाया जाता है। जी महाराज। महाराज जी एक प्रश्न पूछूं महाराज जी, थोड़ा सा महाराज जी पूछूं? अरे ठहरो अभी करने दो, खत्म होता तुम खत्म ही नहीं होगा फिर। महाराज ये जो जप करते हैं तब अर्थ भावनम, तो उसका जो फॉर्मुलस का भाव रहता है हमारा जो मतलब कि उसकी ट्रेनिंग हो जाती है माइंड की कि जब हम रामकृष्णा का ध्यान करते हैं और जब करते हैं तो फॉर्मुलस का भी भाव रहता है, उसका ब्रह्म का भी भाव रहता है। जी महाराज। ठीक महाराज, ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, कैन लिंगा बी टेकन एज ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन और शिवा? व्हाई इज लिंगा वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा? तो शिवलिंग जो है ना वो तो शिव जो है प्रतीक है, वो लिंग जो है वो शिव का प्रतीक है। प्रश्न क्या है तुम्हारा? तो लिंग को लिया जाता, शिव भगवान की मूर्ति को नहीं लिया जाता महाराज? ना मूर्ति हो या मूर्ति के बदले लिंग हुआ ना। मूर्ति के बदले लिंग है, मूर्ति के बदले लिंग हुआ। अरे चक्र बना दिया, चक्र को सिंबल बन दिया, किसी को भी सिंबल बना दो। जी ना सिंबल केवल मूर्ति होना चाहिए, ये प्रतीक चाहिए ना हमको। एक फूल ले लिया, फूल जो है भगवान का प्रतीक बना दिया हमने। यानी शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला को विष्णु के प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। तुम कहोगे कि नहीं विष्णु की मूर्ति होनी चाहिए, ये प्रश्न है क्या तुम्हारा? हाँ जी महाराज, जी महाराज। अरे भाई तो शालिग्राम पूजा हो रही है फिर क्या करोगे? शालिग्राम प्रतीक प्रश्न है ना, प्रतीक यानी क्या? सिंबल। जी महाराज। सतीश, सतीश नाम है, ये सिंबल हुआ। जी महाराज। अरे बाबा ये तो इतनी चीज नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, उसमें पेज में है 3, व्हाट इज द 2 dimensional पेंटिंग आइकॉन ऑफ ग्रीक चर्च? अरे वो आइकॉन यानी के प्रतीक, आइकॉन यानी प्रतीक हुआ, फिर आइकॉन यानी होता है मूर्ति। हाँ जी। तो ग्रीक लेकिन चर्च में मूर्ति तो 3 डायमेंशनल होती है ना। हाँ जी।
मूर्ति जो है 3 डायमेंशनल होती है ना, ऊपर नीचे होती है, सामने होती है, जी। और ये है 2 डायमेंशनल। ग्रीक चर्च, मानो मूर्ति के पिक्चर्स हैं। जी जी, चर्च की पेंटिंग है। हाँ, वो प्रतीक है और क्या। जी जी महाराज, वेदास रेफर्स टू वेरियस नेम्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा है आर्टिकल में कि हाँ। उसमें वेदास में बहुत सारे नाम, तो परमात्मा के नाम लिखे हुए हैं। डज इट आल्सो पॉइंट्स आउट वेरियस फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ गॉड? उसके नहीं नहीं, कुछ नहीं है, फॉर्म्स के बारे में कुछ नहीं, एक ही परमात्मा। नहीं नहीं, वहां पे देव, इंद्र मातरिश्वा इत्यादि बहुत सारे नाम है। तो सब वेदों में नाम ही नाम भरे हुए हैं, वहां पे कोई मूर्तियां नहीं है। मूर्ति नहीं, जी जी महाराज, कोई मूर्ति का वर्णन नहीं है। ठीक महाराज। ये तो बाद में पुराण आए, विष्णु पुराण आए, शिव पुराण आए, उसमें सारे भगवान के नाम, रूप इत्यादि का वर्णन आया। जी महाराज, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन महाराज, उसमें our physical body can be worshipped as a symbol, but we should meditate on various centers of consciousness in our body and rise towards the God within. ये तांत्रिक साधना है. The tantric book says that it can be done by controlling the lower levels of thinking through guided realization of the spiritual possibilities within ourselves. We should clear the channels through which one's consciousness passes. ये तांत्रिक साधना के बारे में बताइए। प्रश्न क्या है तुम्हारा? ये तांत्रिक साधना ये कैसे होता है हमारा, ये बताइए। अरे तांत्रिक साधना किताब पढ़नी पड़ेगी, 5 मिनट में क्या बताएंगे तांत्रिक साधना। यानी इसमें कॉन्शियस को राइज करना, हमारी साधना करते हुए कॉन्शियस को राइज करना। चक्र है ना, चक्र तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, उसके बाद में फिर सब ऐसे पूरे ऊपर लेके 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों में यही इनका कहना है कि कुंडलिनी जागृत होती है। तो जब हमारा मन जब संसारी विषयों में लगा रहता है, भोग में लगा रहता है, तो नीचे वाले 3 चक्रों में मन जाता है। तो करना क्या है कि हमको इन विचारों को, बुरे विचारों को रोकना पड़ेगा, संसारी विचारों को रोकना पड़ेगा, हमारी जो भोग वृत्ति है उसको रोकना पड़ेगा, तब ये चैनल्स जो है वो क्लियर होंगे और मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा, और तब मन जो है वो ऊपर के केंद्रों पे आएगा। मतलब यह है हृदय में आएगा, मतलब यह है कि हम भगवान का निरंतर चिंतन कर सकेंगे, और भी ऊपर आने पर और भी अच्छा होगा, भगवान का मानो ज्योति दर्शन होगा। उसके बाद में ऐसा लगेगा कि भगवान बिल्कुल सामने हैं, स्पर्श कर देंगे ऐसा। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे आएंगे। कैसे होगा ये? मन को शुद्ध करना पड़ेगा, नीचे के लेवल को से हटाना। मतलब यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, सांसारिक विषयों से मन को हटाना, ये प्रैक्टिस है साथ। दिस इज डन थ्रू मेडिटेशन आल्सो। मेडिटेशन है, सभी साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, उससे करना पड़ेगा। जी महाराज, प्रणाम। हो गया महाराज, प्रणाम। अच्छा देवाशीष, क्या पूछ रहे थे तुम? महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब प्रतिमा का लाया जाता है, पूजा शुरू होता है, तो प्रीस्ट या जो बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक चीज क्या होता है, मतलब अपना सोल को उसमें दिस इज नॉट द सब्जेक्ट हियर। प्राण प्रतिष्ठा यानी पत्थर है ना, वो तो मिट्टी है ना। हाँ, मिट्टी की पूजा मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लिविंग इमेज की पूजा करना है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मेंटली मैंने उसको, मेंटली सारा मेंटल होता है ये। अच्छा, मानसिक रूप से मैं समझता हूँ कि जो मूर्ति है वो लिविंग है, जागृत है, देवी है। हाँ, ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ। हाँ, वो अपने सोल को वहां पर डालते हैं क्या? अपने सोल जो है? अरे सब मेंटली हो रहा है, मेंटल लेवल पे हो रहा है। अच्छा अच्छा महाराज जी, अच्छा, बाप रे। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सतीश हो गया? कुंडू? हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। कुंडू? हाँ महाराज, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही। हाँ महाराज, कैन यू हियर मी नाउ?
आवाज नहीं आ ठीक से आ रही। कुंडू जी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, कुछ एडजस्ट करना है वॉल्यूम को। नहीं, वॉल्यूम तो हाई है। तो वो ठीक से प्लग नहीं होगा जैक या कुछ। अभी सुनाई दे रहा है? अब बहुत फीबल वॉइस है। मे बी नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा। कम क्लोज टू द माइक, माइक थोड़ा करीब आके बोलिए। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? कम ही है आवाज। नहीं आया। टावर कम होगा फिर आज नेटवर्क। मुझे तो क्लियर सुनाई दे रहा है। नहीं, आवाज क्लियर है पर बहुत फीबल है, वॉल्यूम नहीं है ना। तो That's what I'm telling. मैं तो फुल वॉल्यूम में रख दिया। माइक टेस्टिंग में जाके देखें, कहीं आपके माइक का वॉल्यूम कम हो गया हो। स्पीकर एंड माइक टेस्टिंग है, माइक के पास एक ऊपर की तरफ एरो है, उस पे जाएंगे तो स्पीकर टेस्ट, स्पीकर एंड माइक्रोफोन, उसमें जाकर दिख जाएगा कि वॉल्यूम कम है या ज्यादा। इन द मीन टाइम निवेदिता को लेने। हाँ यस महाराज जी। निवेदिता। जी महाराज, मेरा जो पहला प्रश्न है वो एक स्पाइनल कॉर्ड के चैनल की क्लीन करने के लिए कहा गया है, शुद्धिकरण, तो वो कैसे करने का, ये प्रश्न है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीपिंग चैनल्स प्योर, क्लियर वही तो चैनल्स क्लियर। अभी डिस्कस किया ना, हाँ, यानी चैनल्स, यानी जैसे ये जो षट चक्र की बात कही ना, तो कुंडलिनी अगर नीचे चक्र के रास्ता जो है वो बंद होगा तो कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकेगी, ऊपर नहीं जा सकेगी। यानी सांसारिक चिंतन करते रहोगे, भोग में पड़े रहोगे तो चैनल्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, माय पॉइंट। ये बिल्कुल समझ गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, हाउ, एक इनर स्पेस की बात की, हाउ टू मेडिटेट ऑन इनर स्पेस। वो इनर स्पेस का है, कल्पना करना है कि हृदय में नहीं, हृदय में कल्पना करना है। ठीक है, अपने तो सीने में, चेस्ट है ना सीने। जी, आध्यात्मिक जो हार्ट है। Anatomically we know that in the chest there is a space in which मांस भरा हुआ है और lungs और heart है। So that space, consider that that space is empty, और उसमें एक लोटस का मध्य करो और उसके ऊपर लोटस के ऊपर अपने को बिठा। So that is the meditation in inner space. Where we meditate usually, that is a space. Yes, जैसे हम, there is a space, inner. तो उसके बाद मेरा जो प्रश्न है कि is it limited to our own self, माइक्रोकॉस्म में ही करने का है कि मैक्रोकॉस्म में भी? भाई पहले तो माइक्रोकॉस्म में करो। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ सुनाई मुझे। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हेलो। पहले तो माइक्रोकॉस्म में करने का है, आफ्टर वी एस्टेब्लिश आवरसेल्फ, फिर बाद में मैक्रोकॉस्म। अच्छा, तीसरा जो प्रश्न है कि वो एक पर्सनल है, जैसे कि हमारे पूजा रूम में 2 शिवलिंग आ गए किसी प्रकार से, तो कोई कहते हैं कि 2 शिवलिंग रखकर पूजा करना ठीक नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, वो पूछने का। भाई ये सब मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम ये सब। ठीक है, ओके। ये रिचुअल्स वगैरह में चक्कर में पड़ोगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। हाँ यही पूछे। You yourself have got into problem. ओके। अच्छा, अभी और एक है, रुकिए, और एक है। हाँ, वो जो पहला प्रश्न सब लोगों ने पूछा है, हाउ वी विल नो दैट वी हैव टू रिनाउंस द रिचुअल्स, वो हाउ वी विल अंडरस्टैंड। हमको तो दोनों अच्छा लगता है, रिचुअल भी ठीक लगता है और
हाँ तो कंटिन्यू करो, अच्छा लगता है। हाँ, कंटिन्यू करो बस। हाँ ये हाँ, बस ठीक है, बस इतना ही था प्रश्न। प्रणाम महाराज। अच्छा कुंडू, ठीक हुआ तुम्हारा? कैन यू हियर मी नाउ महाराज? नहीं आ रही है वॉइस नहीं, आज फिर कुंडू, नहीं आ रही वॉइस, आवाज नहीं सुनाई दे रही। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। हाँ ठीक है, हम लोग अगली बार कर लेंगे फिर। ठीक महाराज। महाराज एक और भी सेशन है मेरा, तो हम लोग अगले 5 नहीं, मिनट में हो गया वाइंड अप तो। कर सकते हैं। हो गया अच्छा, इट इज ओवर। क्वेश्चंस था। शांति हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। प्रणाम महाराज।